الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على
جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह ये तुहाडे सामने हाफिज मुहम्मद अब्दुल्ला तलावते कुरान पाक पेश कर रहे सी। अल्लाह ताला इनू लंबी सेहत वाली जिंदगी अता करे बचाए। हुण तुहाडे सामने मोहम्मद बिलाल वलीपुर बूढ़े तो बहुत खूबसूरत नात खान आउंदा है तशरीफ फरमाए तुहाडे सामने नात पेश करते हैं। उस तो बाद साढ़े सामने साढ़े हमसाए खतीब वाजे खुश बयान यासीन यजदानी अड्डाए पंचक तो वो खिताब करनगे। हुण मोहम्मद बिलाल नात खां वलीपुर बूढ़े तो तुहाडे सामने नात पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दी तौफीक दे नाल पहली दफ़ा तुहाडे गाँव दे अंदर तशरीफ आवरी हुई है ते चंद दिनों तो बीमार हाँ। मेरी दुआ है कि जितने भी बीमार ने अल्लाह पाक सारिਆਂ ਨੂੰ सेहत तो तंदुरुस्तियाँ अता फरमाए। मैनू अपनी मशहूरी का कोई नहीं ना ही मैं वाह करवाना चाहता दूसरे नात खावां की तरह तो ना ही मेरी आदत आ कि मैं तुहानूं कहां कि सुबहान अल्लाह बार बार कहो सुबहान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अल्लाह ने इलम दिता है मेरी कोशिश है कि तुहाडे दोस्तां दे अगे फॉरवर्ड करां। तो सब तो पहले हमदे बारी तला दे चंद अल्फाज उस तो बाद एक रुबाई तो उस तो बाद अज़मत कुरान तो इंशाअल्लाह चंद अल्फाज अल्लाह पाक की तौफीक दे नाल कल ही तरतीब दिते ने ते बड़ी ही मुहब्बत दे नाल समात फरमाया जे। तकब्बर गुरूर दे नाल यारो ते बुलंद नसीब नहीं हो सकदा। तकब्बर गुरूर दे नाल यारो ते बुलंद नसीब नहीं हो
ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਫੈਜ਼ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਫੈਜ਼ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਪਾਬੰਦ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕੁਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਦੀਦ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਖੋਲੇ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਖੋਲੇ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਝੂਠਾਈਓ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਝੂਠਾਈਓ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ,
ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਸਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਅਜ਼ਮਤ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਜਲਸਾ, ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਜ਼ਮਤ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਦਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਆ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਫ ਦੀਆਂ 10 ਨੇਕੀਆਂ, ਕਮਾਲ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਸ ਹਨ ਨੇਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਫ ਦੀਆਂ 10 ਨੇਕੀਆਂ, ਕਮਾਲ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਸ ਹਨ ਨੇਕੀਆਂ। ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨੇਕੀਆਂ, ਦੇਣਗੀਆਂ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨੇਕੀਆਂ। ਮੌਕਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਕਬਲ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸੁਬਹ ਦੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਫਿਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਦਾਵਤ ਫਿਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਯਾਤ ਹਾਂ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੀ ਵਾਹਦ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹੇ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਟਿਕਟੋਕ ਪਬਜੀ ਹਾਂ ਲੈ ਲਈ ਦੋਸਤੋ। ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਨਾਲੇ ਛੱਡਿਆ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦੋਸਤੋ। ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਨਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦੋਸਤੋ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਸੌਖਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਨਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਧੋਖਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਨਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, दीन इस्लाम उतों वार जिंदगी, कुरान दे मुताबिक गुजार जिंदगी। दीन इस्लाम उतों वार जिंदगी, बन जाएगी तेरे लिए बहार जिंदगी। मौका तेनू परवरदिगार दिता है, साडे ते एहसान बड़ा अल्लाह पाक दा।
ओ जिन्ने सानू अपना कुरान दिता है, कुरान दी तलीम समझान वास्ते ओ सानू नबी सुल्तान दिता है, कुरान दी तलीम समझान वास्ते ओ सानू नबी सुल्तान दिता है। हमदे बारी ताला दे चंद लफाज इंशाअल्लाह। मरहबा मरहबा माशाअल्लाह। कारिउल कुरान शेर पंजाब हाफिज़ हज़रत मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब आपके सामने हैं। इंशाअल्लाह चंद अल्फाज के बाद वो आपके सामने खिताब करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह 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 हर दम अल्लाह 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 हर दम अल्लाह अल्लाह। जद मुश्किल आवे हल अल्लाह करदा अल्लाह करदा अल्लाह करदा। खाली झोलियां सब दियां बस अल्लाह ही भरदा अल्लाह ही भरदा अल्लाह ही भरदा। बन रब दा सवाली कदी जावेगा ना खाली, बन रब दा सवाल कदी जावेगा ना खाली। ओ सब दियां झोलियां भरदा अल्लाह 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 हर दम अल्लाह अल्लाह। के हर पीर पैगंबर अल्लाह दे सवाली, अल्लाह सब दा दाता ओ सब दा वाली। बन रब दा सवाली कदी जावेगा ना खाली, बन रब दा सवाली कदी जावेगा ना खाली। ओ सब दियां झोलियां भरदा अल्लाह 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 हर दम अल्लाह अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बिला तखीर तुहाडे कोल साडे खसूसी मेहमान हज़रत मौलाना हाफिज़ मुहम्मद यूसुफ पसरूरी तशरीफ़ फरमा ने। बगैर किसी तखीर तो असी तुहाडे सामने खिताब शुरू कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ਇਹਦੀ ਡਬਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਣਾ। इको डबलिंग बंद, सिर्फ सादा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। सामीन हज़रात, कुरान पाक दुनिया दी ओ किताब है कि साडे महबूब नू अल्लाह ने मक्के दे अंदर एक कुरान जैसा मोइज़ा अता कीता। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। अंबिया जदों मोइज़ात लैके आए तो कौमां ने मोइज़ात नूं वेख के भी ईमान ना लियांदा, बल्कि उल्टा उन्होंने कहा तो जादूगर ने। साडे महबूब नूं अल्लाह ने मोइज़ा अता कीता कुरान दा,
मक्के दे अंदर बड़े बड़े जहलीयत दे शेर लिखन वाले शुआरा मौजूद सन। मक्के दे चौकां च दरवाज़ियां ते वो बेहूदा किस्म दे, फजूल किस्म दे, लच्चर किस्म दे शेर लिखते सन, जिन्हां दे जाविये आपस के अंदर बड़े मिलते सन। तो अल्लाह पाक ने उसी दौरान वक़्त के मुताबिक अल्लाह ने कुरान जैसा मोइज़ा साडे महबूब नू अता किया। आसमान तो 104 कुतब नाजल हुई ने। 50 सहीफे नबी शीश ते नाजल होए, 30 सहीफे नबी अदरीस ते, 10 सहीफे नबी आदम ते, 10 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते, तौरात नबी मूसा ते, अंजील नबी ईसा ते, ज़बूर नबी दाऊद ते, कुरान साडे महबूब ते। अल्लाह ने 103 कुतब दे अलूम कट्ठे करके अल्लाह ने कल्ले अपने कुरान दे अंदर जमा कर दिते हैं। पूरियां किताबां दा महवर मरकज़ अल्लाह ने अपने कुरान पाक नू बनाया और दुनिया की ये वाहद किताब है जिन्हों अल्लाह ने अपनी कलाम आख्या। तो नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, जेड़ा बंदा चाहता है मैं अपने रब ना डायरैक्ट गल्लां करा, अपने अल्लाह ना, उन्हों चाहिए वो कुरान की तलावत करे। जिन्ना चिर बंदा कुरान पढ़ता रहिंदा है वो अपने रब नाल गल्लां करदा रहिंदा है। और फिर ये दुनिया की एक वाहद किताब है जिदी कोई अज तक जेर नू जबर और जबर नू पेश, पेश नू शद और मद नहीं कर सकिया। बल्कि मैं तो कहांगा 10 लाख तो उत्ते इहदे नुकात ने कुरान दे। इहदे एक नुकते नू नीचों चुक के कोई ऊपर नहीं पा सकिया, क्योंकि इहदी हिफाजत का जिम्मा रब्बे कायनात ने खुद लिया है। तौरात बदल गई है, अंजील बदल गई। जिहड़ी तौरात इस मुल्क च यूरोप च चले जाओ ये तौरात नहीं होएगी। ज़बूर बदल गई, सहीफियां दा पता ही कोई नहीं किथे है किथे नहीं। लेकिन कुरान दुनिया की वाहद किताब है जिहड़ी पाकिस्तान च, वही हिंदुस्तान च, वही तजकिस्तान च, अफगानिस्तान च, वही बाद यूरोप के अंदर है। समुद्रां दे जजीरियां च भी चले जाओ तुहानूं यही कुरान मिलेगा। पहाड़ां दियां चोटियां ते चले जाओ यही कुरान मिनवान मिलेगा। इस कुरान नूं ना दुनिया की कोई ताकत बदल सकी है, ना बदल सकती है, ना बदल सकेगी। और सब तो ज़्यादा पूरी कायनात च पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है, सब तो ज़्यादा। और सब तो ज़्यादा हाफिज कुरान पाक दे होर किसी किताब के हाफिज इन्ने नज़र नहीं आउणगे जिन्ने कुरान के हाफिज ने। रमज़ान आ गया ना, वेख्या जे एक हाफिज ने सुनाना पिछे 4-4 सामे खलोते होंदे ने। ये कुरान का एजाज़ है। और कुरान का पढ़ना, कुरान का पढ़ाना, कुरान का सीखना, कुरान का सिखाना, ये बड़ा उच्चा और सुच्चा अमल है, छोटा अमल नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन्होंने 7 हिजरी च इस्लाम कबूल किया। 11 हिजरी के अवाइल के अंदर नबी अलैहिस्सलाम दुनिया तो रहलत फरमा गए। 3 साल 2 महीने नबी की मैयत च रहे। 3 साल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 5374 हदीसां ज़बानी याद की थी। और नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ भी की थी, अल्लाह मोमिनीन दे दिल च अबू हुरैरा तेरी माँ की मुहब्बत पा दे। तो जेडे मोमिन ने अज भी प्यार करते हैं अबू हुरैरा, उन्हां दी माँ ना भी करते हैं, अबू हुरैरा ना भी करते। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी जिंदगी पैगंबर दे नाल रहे। इस्लाम दे कबूल करन तो बाद 3 साल सहाबा ने आका दे जान तो बाद जदों साडा कोई मसला फसदा सी, अड़दा सी ना, असी हज़रत अबू हुरैरा वर रजू करदे ते अबू हुरैरा जिहड़े सन ना वो सानू नबी दी हदीस सुना के साडा मसला हल कर देंदे। सुभान। मुस्नद अबी हुरैरा एक रवायत है, किताब है, जिदे अंदर हज़रत अबू हुरैरा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दियां अहादीस नूं जमा कर दिता गया। हसन दर्जे की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह रसूल मैनू किसी बात की नसीहत कर दिओ। आपने फरमाया अबू हुरैरा कुरान पढ़िया कर, कुरान पढ़ाया कर, कुरान सिखिया कर, कुरान सिखाया कर। अल्लाह के रसूल मैं कुरान पढ़ांगा पढ़ावांगा मैनू भी कुछ मिलेगा। फरमाया कुरान पढ़दा पढ़ांदा दुनिया तो मर जाएगा, बिला नागा तेरी कबर ते 70,000 फरिश्ता तेरी बख्शिश की दुआ करेगा। कितना बड़ा मुकाम है यार कुरान दे पढ़न पढ़ान दा। असी अपने बच्चों को कुरान वाल नहीं लियाउंदे। अही आखे ना बच्चे नूं हाफज़े कुरान बनाओ, यार इनू आलिम बनाओ। छड्डो जी मौलवी बना के बच्चा भुखा मारना। कदी को मौलवी भुखा मरदा वेख्या जे? बोलते नहीं। ओवरलोड हो गए तो मर सकता, भुखा नहीं मर सकता है। ये एवं खाम ख्याली है। बंदा मरन की डेरे नाल ही टैक्स शुरू हो जाते हैं। तो 40 आउन तक मौली साहब मसला विछा के दुआ कर या अल्लाह को होर भी को मरे हुण। इस तरह ही मैं कह रहे। लेकिन मेरे भाईओ जिहड़ा आलिम है ना जिहदी लड़ी कुरान नाल टच हो गई है, अल्लाह उस इंसान नूं दुनिया दे उत्ते जिल्लत रसवाई दी मौत नहीं मारदा। अल्लाह जान लग्या भी इज्जत देंदा है और कुरान दे हाफिज नूं दुनिया च भी अल्लाह इज्जत अता करदे ने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कुछ वजूद ऐसे ने जिन्हां नूं मरण तो बाद कबर दी मिट्टी खांदी नहीं। उन्हां दे विच अंबिया दे वजूद ने, शुहदा दे वजूद ने, सहाबा दे, औलिया दे वजूद ने। उन्हां दे विच कोई भी वजूद है जिहदे सीने च अल्लाह दा कुरान है। जदों हाफिज ते कारी कुरान दुनिया तो जांदा है व औहा इलल अरस ला ताकुली लहमहू, अल्लाह आसमान तो वही कर देने जमीन तेरे अंदर मेरे कुरान दा कारी ते हाफिज आ रहा है, इहदा गोश्त ना खाई। जमीन जबाने हाल चो बोल के आंदी अल्लाह किवें खा सकनी है, ते सीने ही ते तेरा कुरान है। हुण जिहदे सीने च कुरान होए उन्होंने कबर दी मिट्टी नहीं खांदी तो उन्होंने जहन्नम दी अग किवें खाएगी? बोलिए। इस वास्ते कुरान ना प्यार कीजिए। कुरान डेली पढ़िया करो, भावें 2 रकू पढ़ो। ये डेली पढ़न दे अंदर बरकत बड़ी है, रहमत बड़ी है। अल्लाह दियां रहमतां नाज़िल होंदियां ने। वैसे भी कुरान दा एक हरफ पढ़िए तो 10 नेकियां मिलदियां ने। तो एक रकू बंदा पढ़े उहदे च किन्ने हरूफ ने उन्होंने 10 ना ज़रब दिओ किन्नियां नामाए माल च नेकियां लिखियां जाणगियां। बोलते नहीं। तो हुण कुरान साडे घरां च पए ने, उत्ते घट्टा पिया है, कदी वो फड़ के हाँ झाड़िया भी नहीं, ठप्पे पे ने। पूरा पूरा साल गुजर जाता कुरान नहीं खोलते। कईयां हुण रमज़ान च पढ़ना तो पूरा साल छुट्टी। की गल जेडे नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान च अमल करते हैं पूरा साल नहीं सन करते? अगर रमज़ान च नबी पाक ने कुरान का दौर किया है जबरील ना, तो पूरा साल ही करते रहे ने। रमज़ान च आपने अगर तरावियां पढ़िया ने पूरा साल ही तहज्जुद पढ़ते रहे ने। रमज़ान च रोज़े रखे ने तो नबी पाक ने हर महीने के 3 रोज़े वखरे, सोमवार ते जुमेरात का रोज़ा वखरा, अयामे 20 के रोज़े वखरे। आप तो पूरा साल ही रोज़े रखते हैं तरतीब ना। अगर नबी अलैहिस्सलाम ने रमज़ान च अल्लाह को मंगया है तो पूरा साल ही मंगया है। ये नहीं कि रमज़ान च दुआवां कीतियां ने पूरा साल छुट्टी, ये नहीं होया। रमज़ान के अंदर अगर अज़कार कीते ने, सदकातो खैरात कीते ने तो पूरा साल कीते ने। अल्लाह आंदे ने रमज़ान जैसी जिंदगी तू बना लै तो ईद जैसी मौत मैं दे देंगा। पर बनाइए तो सही। रमज़ान का महीना साड़ियाँ मसीतां वेख्या जी किन्नियां भरदियां ने। पहले 5-10 दिन नत्थू भी, फत्तू भी, दूसरा तीर सारे ही आए। जदों कोई 10 रोज़े गुजरने ने बाद फिर विच कोई 10-12 रोज़े खाली, यानी कि मसीतां खाली। वही रूटीन के नमाजी जिहड़े है ने। तो फिर आखिरी दिन कोई 2-3 दिन, तो फिर जदों चन्न चढ़ जाना तो फिर मसीत के लोटे भी आते हैं लोटे किधर गए ने? जिहड़े रमज़ान के नमाजी सन वो किधर गए ने? लोटे ही आखे जाता ना। जिन्हां पक्के कदमां नाल अल्लाह के घर च आउंदा है, रब के घर नूं छड्डदा नहीं, पूरा साल आउंदा है, तकबीरे ऊला नाल नमाज़ां पढ़दा है, अज़कार करदा है, कुरान पढ़दा है, इहदी बहार है। कोई छोटा भी अमल होए उहदे ते हमेशगी होए, अल्लाह उहदा अजर बड़ा देंदे ने। अल्लाहु अकबर। आइए ज़रा गौर कीजिए
फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून। भई इनू ठीक कर, इको ना खोल, ऐदी चूं चूं बंद कर, ची ची। फरमाया कुरान नू उतारिया भी असें, इहदी हिफाजत भी असी करांगे। दिल्ली दा चौक है, ईसाइयां दा पादरी है, दिल्ली दे चौक चाहुंदा है, अंजील नू मसाला इस किस्म दा चाढ़दा है, इनू अग नहीं लगदी। इस मसाले नू आंदा मुसलमानो तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है। आ जाओ इत्थे चौक च अग जला लैने आ, तुसी अपना कुरान सुटदे हो, मैं अपनी अंजील सुट देना वा। जिहड़ा सच्चा होएगा ओदी किताब बच जाएगी, जिहड़ा झूठा होएगा ओदी किताब सड़ जाएगी। जदों इन्नी गल कही ईसाइयां दे पादरी ने, किन्ने दिन हो गए ने ये चौक च चैलेंज करदा पिया। शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी मर्दे मुजाहिद जिंदा ने, हदीस दी मसनद दे बह के हदीस पे पढ़ाते ने। मुसलमान कट्ठे होके ना को आए, शाह जी ईसाइयां दा पादरी अज किन्ने दिन हो गए ने दिल्ली दे चौक दे अंदर ए बकवास पिया करदा है। शाह अब्दुल अजीज़ उठदे ने, ਇਹਦੇ को आ जाते ने, आंदे ने दस की आना है। आंदा शाह जी तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है। आ जाओ इत्थे अग जला लैने आ, तुसी अपना कुरान सुटदे हो, मैं अपनी अंजील सुट देना वा। जिहड़ा सच्चा होएगा ओदी किताब बच जाएगी, जिहड़ा झूठा होएगा ओदी किताब सड़ जाएगी। शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी फरमान लगे, तू आना कि कुरान फड़ के असी अग च सुट दईए, साडी गैरत जिहड़ी है गवारा नहीं करदी, साडा ईमान इस बात की इजाजत नहीं देंदा। असी ते कुरान नू उच्चा बहना भी बर्दाश्त नहीं करते, असी कुरान नू बेवजू हथ लाना बर्दाश्त नहीं करते। तू कहना कि कुरान अग च सुट दईए, नहीं होना। इस तरह कर, कुरान मेरा है, अंजील तेरी है। तू अंजील अपने सीने ना ला लै, मैं कुरान अपने सीने ना ला लेना वा। अग जला लेने आ, छाल तू भी मार दे, छाल मैं भी मार देना। जिहड़ा सच्चा होएगा सने किताब ही बच जाएगा, जिहड़ा झूठा होएगा सड़े किताब ही सड़ जाएगा। ईसाइयां दा पादरी दिल्ली दे चौक चों नस पैंदा, आंदा मैनू पता हुंदा शाह अब्दुल अजीज़ वर्गे मर्दे मुजाहिद जिंदा ने। जिहड़ा मसाला मैं अंजील नू चाड़ के आया सां, वो मसाला मैं अपने बदन नू भी चाड़ के आउंदा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून। आइए जरा, एक यहूदी ते अंग्रेज़ बैठे ने। अंग्रेज़ यहूदी नू कहंदा मुसलमान तादाद दे लिहाज ना थोड़े ने, लेकिन मैनू एक नुस्खा दसना, मैं मुसलमानां ते गालिब किवें आ सकना। पता ये चलिया उदों मुसलमान तादाद दे लिहाज ना थोड़े सन, पर है गालिब सन। अज तादाद दे लिहाज ना ज़्यादा ने, है मगलूब ने। ਇਹਦੀ की वजह? वो कुरान दे आमिल सन, असी कुरान दे तारिका। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, हम खार हो रहे हैं तार के कुरान होकर। अज कुरान नू छड्डिया ना, ताई ते साडे मुल्क दी महंगाई कित्थे टुर गई है। फेसबुक चलाने आ, कुरान सुनन दी बजाय मुसीकी सुनने आ, बेहुदा किस्म दी बकवासात लेने आ। कुरान ने क्या सूदी कारोबार ना करो, केड़ा घर है जिहड़ा सूद तो बचे है? कुरान कहंदा शराब ना पीओ, शराब आम पीती जा रही है। बदकारी ना करो, बदकारी दे अड्डे खुले ने। कुरान कहंदा बूढ़े वालदैन दी खिदमत करो, असी बूढ़े वालदैन नू रात नू फुटपासां ते सुआने आ। कुरान कह रहा यतीमां दा हक नहीं मारना। चाचा भतीजे जिहड़े यतीम ने उन्हां दी सारी जमीन ते कब्जा करके बैठा है, किते मामा भांजियां दी जमीन ते कब्जे करके बैठे ने। भैणां दे हक असी नहीं देंदे, बेटियां दे हक असी नहीं देंदे। किहड़ी गल है जिहड़ी असी कुरान दी मानने आ? तां ही ते इस वक्त असी मगलूब हाँ। तादाद दे लिहाज ना मुसलमान सब तो ज्यादा ने इस वक्त आल वर्ल्ड दुनिया च हुण, लेकिन है मगलूब ने। कुरान नू छड्डिया। अंग्रेज ने क्या
ये यहूदी कुरान थले रखदा है, उत्ते अपना पैर मारदा है, आंदा जब तक इन्हां को कुरान मौजूद है तो मुसलमानों के गालिब नहीं आ सकता। इन्हें वो जड़ियाँ मसीतां है सन मुसलमानों दियां, उत्थों कुरान के नुस्खे मुसलमानों के घरां चों कट्ठे कीते, मैदान च रख के ने कुरान के नुस्खियां नूं अग ला दी। ये कुरान नूं अज दे नहीं जलांदे, ये यहूदो नसारा, ये शुरू तो ही इस कुरान के दुश्मन ने, जिन्हां तो बगैर ही कि नाल दा रोटी भी नहीं खांदे। साडियां सारियां जिन्नियां भी लगामां ने ना, वो अमरीका के हत्थ च ने, यहूदियों के हत्थ च ने, जो ना कहना वो इत्थे होना है। पाकिस्तान बज़ाहिर आज़ाद मुल्क है, लेकिन अहीं कैद हाँ यहूदो नसारा दे। अल्लाहु अकबर। हुण जदों जलाया बड़ा राजी बैठा है, अंग्रेज आंदा है मैं मुसलमानां ते गालिब आ जावांगा। सुबह का टाइम है, अंग्रेज का वजीर मस्जिद के कोलों दी लंघदा पिया, वेंदा की है मस्जिद दे सेन दे अंदर एक अखां तो नबीना है, उमर इहदी 9 साल है, मस्जिद दे सेन च खलो के कुरान दियां उची उची तलावतां पिया करदा है। वजीर जाके आंदा अंग्रेज नूं तू मुसलमानां ते गालिब नहीं आ सकदा। आंदा क्यों, मैं तो इन्हां दे नुस्खे जला दिते ने, हुण कुरान रहा ही कोई नहीं। उन्हें क्या नुस्खे ते जलाएगा, इन्हां दे सीनियां चों कौन कढेगा। अल्लाह अकबर। ये है कुरान दा एजाज। आइए मैं एक हदीस और सुनावा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी आए, कहन लगे अल्लाह दे रसूल, मेरा छोटा भाई घर दे अंदर कुरान पढ़ी जांदा है, उन्होंने कहो सू फजर तो बाद कुरान पढ़े, सारा दिन मेरे ना काम करे, मैं काम कल्ला ही करना। आका फरमांदे ने, ओ मेरे सहाबी, तेरा छोटा भाई घर च कुरान पढ़दा है, ओदे कुरान पढ़न की वजह तो अल्लाह रिजक तेनू अता पे करदे ने। यानी कुरान की इन्नी बरकत है। साडे घरां साडियां बीवियां बहू बेटियां कुरान पढ़दियां ने तो उहदी बरकत बाप की कमाई च पैंदी है। अगर बीवी कुरान पढ़े तो खावन की कमाई च अल्लाह बरकतां पांदे ने। बीबियो तुसी कुरान की तलावत करया करो। एक वक्त वो सी कि चक्की घेड़दियां बीबी कुरान पढ़दी है, आटा गुनदियां कुरान पढ़दी है, पेड़े करदियां कुरान पढ़दी है। हुण आटा दे पीसा ही तुहानूं लभ जांदा है, अगों आटा गुनन वालियां मशीनां भी आ गई हैं। लेकिन वो बीबी जिहदा नाम हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ऐ शख्सियत की सीरत तुहाडे वास्ते नमूना है, किसी अदाकारा दी नहीं, गुलूकारा दी सीरत तुहाडे वास्ते नमूना नहीं। मेरियो बहनों बेटियो, ये पैगंबर दी बेटी ते जनती औरतां दी सरदार हजरत फातिमा तो ज़हरा दी सीरत तुहाडे वास्ते आइडियल है। हुण जेड़ी बीबी आटा पींदी कुरान पढ़े, गुनदी, पेड़े करदी, रोटी पकांदी, लांदी कुरान पढ़े, वो रोटी का लुकमा जिस पेट च जाएगा, बेटे हसन ते हुसैन ही पैदा होणगे। ये कुरान की बरकत ने। मैं नाजरा अपनी अम्मी को पढ़िया, वालदा मोहतरमा को, अल्लाह उन्होंने कबर जन्नत की क्यारी बनाए। मेरी मां नूं कुरान के बेशतर पारे जिहड़े सन वो याद सन, तो मैं नाजरा अपनी अम्मी को पढ़िया। मां को मार भी बड़ी खाधी, लेकिन शौक बड़ा सी। साडे पिंड कोई भी कॉन्फ्रेंस होनी, जलसा होना, 2-2 दिन की कॉन्फ्रेंस होनी, उलामा का खाना मेरी अम्मी ने पकाना, फिर देसी मुर्गे लभ के पकाने। मैं एक दिन क्या अम्मी हाँ ठेका चुकिया कि होर नूं भी कहो, अही रोटी पकाने हर वारी, होर किसे नूं तुसीं आंदे ही नहीं, ना कोई पकांदा है। मैनूं कहण लगी पुत्तर ये अज गल कीती अगों ना करी, उलामा की खिदमत करांगी तो रब तैनूं आलम बनाएगा ना। और पढ़ी लिखी बात है, जेड़ा घराना किसी आलिम की उलामा की इज्जत करता है, तौकीर करता है, उस घर चों आलिम जरूर पैदा होता है। ते जेड़े लोग उलामा की तौहीन करते हैं, उन्हां ते दुनिया च भी लानत है ते अगे भी लानत ही होनी है। उलामा की कदर कीजिए, एहतराम कीजिए, अदब कीजिए।
मां दा शौक और ज़ौक अज मैनू इस स्टेज ते पहुँचा दिता है। मेरी वालदा मोहतरमा नू बीबीओ तुसी भी शौक रखो। इमामे बुखारी दी मां सईदे च एवें नहीं सी डिगी, अल्लाह तेरे को पुत्र मंगया सी, हदीस दा मुहद्दस बनावांगी, दिते ही ते नबी ने ही दे छड़े। मैं सिर सईदे चो नहीं चुकना, आवाज़ आई सिर चुक चुक के वेख ते सही तेरे बुखारी नू मैं बिनाई अता कर दी। इमामे बुखारी आंदे ने फिर बिनाई किवें दी मिली? आंदे ने चन्न दी चाननी दे अंदर बह के ना मैं हदीस लिखना भी सा ते हदीस पढ़ना भी सा। 16 साल के अरसे सही बुखारी लिखी है। 11 साल की उम्र च इमामे बुखारी नू 70,000 हदीस ज़बानी याद सी। 6 लाख हदीस के हाफिज सन। 6 लाख चो 7,563 हदीसा सही बुखारी च नकल कीतियां ने और हर हदीस के उत्ते इस्तिखारा किया है। 8 साल रहमत के परनाले थले बह के बुखारी लिखते रहे ते 8 साल रोज़ा तुम मेरे रियाजिल जन्ना च बह के बुखारी लिखते रहे। 16 साल का अरसा लगे और कुरान तो बाद जमीन की धरती ते सही तरीन किताब वो सहीउल बुखारी। जाओ सारे मसलक छड्डो, है भाभी है, सुन्नी है, देवबंदी है, मैं कहना बुखारी मुतरजम लै किताबु सलात कढ़ लो बुखारी दा। सिर्फ तुसी बुखारी दियां हदीस पढ़ लो, तर्जमा पढ़ लो। मैं कहना जिवें बुखारी च लिखिया उवें नमाज पढ़ लो। खुदा दी कसम खा के कहना बुखारी च ओही नमाज है जिहड़ी आमिना दे लाल ने पढ़ी और मेरे पैगंबर नू जबरील ने 10 मरतबा नमाज पढ़ाई है। 10 मरतबा, ध्यान ना सुनो, 10 मरतबा जबरील ने नमाज पढ़ाई। जबरील नू किन्ने पढ़ाई? अल्लाह ने। जबरील ने अगों किनू पढ़ाई? आमिना दे लाल नू। आमिना दे लाल ने अगों 1,44,000 सहाबियां नू पढ़ाई। वो नमाज साडे तक पहुंची। सारी किताबु तौहीद सही बुखारी दा पढ़ लो। खुदा दी कसम खा के कहना किताबु तौहीद पढ़ो, कदी अल्लाह दी जात ना शिरक नहीं करोगे। लेकिन वजह है वे असी मक्खी ते मक्खी मारने आ, मौलवियां दे पिछे लगे आ, जिहदे नाल लगी गली उहदे नाल टुर चली। सानू अहां कदी हवाला मंगिया ही नहीं मौलवियां को, ना ये पूछया कि तुसी ये बयान कर दो किथों करन डे हो। मौलवी साहब दा कोई कुरान हदीस ना तल्लक है? नहीं पूछते। दुनियादारी के अंदर बड़ी पिचौर करने, यानी कारोबार करना होए तो बड़ी अकल है, फहमो फरासत भी बड़ी है, लेकिन दीन दे मुआमलात च भी अपनी फहमो फरासत और अकल नू इस्तेमाल करो ना, ताकि थानू हक लभे। हक किधर है, झूठ किधर है, सच किधर है, बातल किधर है, दुध किधर है, पानी किधर है, पता लगे भी खरा किधर है, खोटा किधर है। अल्लाह अकबर। ए कुरान है, ਇਹਦਾ तर्जमा ही पढ़ लीए ना, एक पारे का तर्जमा ਜਿਹੜਾ बंदा पढ़ ਲੈਂਦਾ वो कभी अल्लाह की जात ना शिरक नहीं कर सकता। साढ़े पाकिस्तान च जहालत इस वास्ते ज़्यादा है कि सानू कुरान का तर्जमा नहीं आता, बोलते नहीं। साडा तो यही हाल है ना, एक अरबी पाकिस्तान तो सऊदी अरब टुर गया, 2 अरबी लड़न, वो अरबी च एक दूसरे को गालां कढ़न, वो कोल खलोता कही जाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें कहा तो ये तो गालां, उन्हें कहा नहीं नहीं ये लड़ते भी कुरान ही पढ़न डे ने है। साडा तो यह हाल जिमें वो चीचा वतनी तो बंदा गया, वो अरबी नाल लड़ पिया। वो अरबी आंदा है अना वतनी, मेरा वतन है, मेरा मुल्क है। वो आंदा है चल चल बकवास बंद कर, अना चीचा वतनी है। ये तो हाल है मेरे भाईओ। आइए कुरान दे नाल अपनी यारी नू लिखा लवो, कुरान अपने बच्चों नू पढ़ाओ। अगर चाहते हो मरण तो बाद क्यामत तक सवाब दा TCS कबर दे अंदर जारी रहे, फिर एक बच्चा हाफिज़े कुरान बना दिओ, एक बच्चे नू दीन दा आलिम बना दिओ। रब्बे किबरिया दी कसम खा के कहना तेरे मरण तो बाद तेरी मैयत अगे पई होएगी, तेरा बेटा तेरा जनाजा पढ़ाएगा। खुदा दी कसमें जेड़ा दर्द तेरे बच्चे दे दिल च, वो दर्द किसे मौलवी ते कारी दे दिल च नहीं। मैं अपने बजुर्गों का जनाजा पढ़ाया, इन्ना रोया कि मेरे को दुआ भी ना पढ़ी जाए। तो मेरे उस्ताद फरमान लगे पुत्र तू आना है जनाजा उस्ताद जी तुसी पढ़ाओ, लेकिन मैं तेनू इस वास्ते किया सी जनाजा तू आप पढ़ा। ए जेड़ी रिक्कत ते हमदर्दी तेरे दिल च मेरे दिल च नहीं सी, ते बेटा जनाजा पढ़ाए प्यो दी मैयत अगे पई होए,
उतों आवाज़ आउंदी है, तू बाप वास्ते दुआवां करदा जा, मैं दे जन्नत च दरजात बुलंद करदा जाना वा। बेटा आंदा अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू वाफीही वाफु अन्हु अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नतल फिरदौस वाइज़हु मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबिन नार अल्लाहुम्मा नव्विर कब्रहू अल्लाहुम्मा बर्रिद कब्रहू अल्लाहुम्मा वस्सि कब्रहू अल्लाहुम्मा जल कब्रहू रौज़तम मिन रियाज़िल जन्ना अल्लाहुम्मा हासिबहू हिसाबन यसीरा। बेटा दुआवां करदा जा रहा है, माँ बाप दे दर्जे जन्नत च बुलंद हुंदे जा रहे ने। रब्बना गफिर ली वली वालिदैया तू पढ़ना जदों नमाज च पढ़ना एक दर्जा बुलंद हो जाता है। ते जन्नत दा दर्जा है किड्डा कुए कमा बैन समा इवल अरद, जिन्ना जमीन आसमान दा खला है इतना बड़ा जन्नत दा एक दर्जा है। अगर तू 5 दफा कहना रब्बना गफिर ली वाली वालिदैया 5 दर्जे रोज दे वादे ने। बंदा आंदा है ये हदीस दे अल्फाज, जे बंदा कहंदा अल्लाह केड़ी नेकी आ गई है मेरे दर्जे बुलंद हो रहे ने, फरमाया ओ मेरे आ बंदिया तेरा बच्चा कुरान दा कारी ते हाफिज ते आलिम है, वो तेरे वास्ते दुआवां करदा है, असी तेरे दर्जे जन्नत च बुलंद करने आ। ते हुण असी ते बच्चियां नूं ये भी नहीं लियाउंदे भी सवेरे फजर दे टाइम आप आ जाने आ ते बच्चियां नूं उठांदे ही नहीं। जे ठाना है तो अगों बच्चे ने गल पै जाना, बाबा डरदा ही नहीं ठांदा, बोलते नहीं। अजकल की औलाद चूं तुहानूं पता मूँह फाटे। बचपन दे अंदर गल याद कर, इधर मेरे अल वेखो, अपने बच्चे नूं बचपन चुंगली तो फड़ के मस्जिद के दरवाजे ते ले आया कर, पूरी जिंदगी तेरे मरण तो बाद मस्जिद का दरवाज़ा नहीं छड़ेगा। बेसिकल बाप दा और माँ दा बड़ा किरदार हुंदा है बच्चे दे पढ़न दे अंदर और उहदे आलिम और कुरान दा हाफिज या कोई अफसर बनन दे अंदर। पहली दरसगाह जिहड़ी ओह माँ दी गोद है। इमाम रबिया मदीने दे बहुत बड़े इमाम गुजरे ने। हज़रत अब्दुर्रहमान फरोख जिहाद वास्ते चले ने, 25-30 साल गुजर गए तो 30,000 दिरहम अपनी बीवी नूं दे गया, तेरा खर्चा है। आप जिहाद ते चले गए, 30 साल का अरसा लग गया तो 30 साल तो वापस आए बाद उन्हें चिर च रब ने बाद बेटा दिता। माँ ने वो 30,000 दिरहम, बीबियों सुनो, वो 30,000 दिरहम अपने बच्चे ते ला के ना उन्होंने मस्जिद नबवी के मुसल्ले का इमाम बनाया तो मिंबर का खतीब बनाया। इमाम अब्दुर्रहमान फरोख जो घर वापस आए ना तो दरवाजे नूं ना अपने तलवार की जी अगे नोक है ना वो खोलिया, अंदरों नौजवान बच्चा निकलिया, 25-30 साल की उम्र है, 29-30 साल, उठती जवानी है। उन्हें कहा भी कौन है बाबा, कौन है, कितों आया? दरवाजा एवं ही खोली जाना, पता है ही घर किदा? उन्हें कहा बई तू कौन है? घर तो मेरा है। वो आखे तू कौन है? घर मेरा है। दोवां बाप बेटे की ना कशमकश, अगों अंदरों आवाज़ माँ ने सुन ली, इमाम रबिया की वालदा ने। उन्हें आवाज़ पहचान ली भी ये आवाज़ तो मेरे खावत की है। जो बाहर आई फरमाया बेटे इमाम रबिया ये तेरा बाप है अब्दुर्रहमान, ये 30 साल गुजर गए सन, मैनू तो पता सी कि शहीद हो गया है, लेकिन तेरा बाप, ये रात का टाइम सी। इमाम अब्दुर्रहमान फरोख अपनी बीवी नूं आंदे ने रात नूं वो 30,000 दिरहम दे गया सा तो उसका कोई हिसाब सूब भी है कि नहीं, कित्थे ला छड़े ने? आंदी है जरा सौ जाओ, तुम थके आए हो, सवेरे फजर की नमाज मस्जिद नबवी च पढ़ के घर आओगे ना फिर तुहानूं हिसाब देंगे। जो नमाज पढ़ने वास्ते घर गए, इमाम रबिया ने कुरान पढ़िया, नमाज च फड़ के उन्हें अखीर कर छड़ी। फिर वो मिंबर ते बैठा, अगे चिट्टियां दाड़ियां वाले बैठे ने, मस्जिद नबवी फुल्ले हाथ, कापी पेंसिलां उन्होंने हथ ने, वो काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी दी हदीस का दरस दे रहा है। सारे लोग उहदियां गल्लां नूं लिख रहे ने ते नाल दे नूं पुछदा है ये अब्दुर्रहमान ये कौन है यार? बच्चा कमाल करी जाता है भाई, एडा वड्डा आलम। वो आंदा तेनों नहीं पता कौन है? नहीं। वो यार वो अब्दुर्रहमान फरोख नामी आदमी सी कोई, तो वो घर अपनी बीवी नूं 30,000 दिरहम दे गया, उन्हें अपने बच्चे दे ला के नूं दीन दा आलम बना छड़िया। सईदे च डिग पिया तो खुशी नाल रोई जाए, रोई जाए।
घर आया, बीवी आंदी है बह जाओ फिर हिसाब ले लो। कह लगे तेरे हिसाब देने की लोड़ नहीं, हिसाब तो मुसल्ले ते मिंबर को ही लाया मैं, तेरे हिसाब देने की जरूरत नहीं। और मेरे भाइयों इन्हां बच्चों को कुरान पढ़ाओ। कुरान ए दौर जिहड़ा मौजूदा जा रहा है, लोग दीनी तलीम वालों बहुत पिछे जा रहे हैं। मदारस के अंदर तादाद बहुत कम हो गई है तुलाबा दी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी वतुल्लिम लिगैरिद्दीन, कुर्बे क़यामत 15 निशानियां दे विचों एक भी है कि दुनियावी तलीम आम हो जाएगी। इस वास्ते मेरे भाइयों ये कुरान दे नाल अपनी लौ नूं लगाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। हज़रत हाफिज़ अब्दुल मन्नान वज़ीराबादी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, अखां तो नबीने ने ते बाप ने नबीना समझ के पखा चला दो, बाप ने नबीना समझ के इन्हों दाखिल करा दिता मस्जिद के अंदर। कुरान दियाँ चंद सूरतां याद करेगा तो मजूर आदमी है किते नमाज पढ़ा लवेगा, लेकिन बाप दी जाने बला इन्हें कुरान दा हाफिज, मुस्लिम बुखारी अबू दाऊद तिरमिज़ी दा हाफिज बन जाना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुण बाप दा पता नहीं सी, इलम नहीं सी, लेकिन अल्लाह पाक ने हाफिज अब्दुल मन्नान वज़ीराबादी पंजाब दे बहुत बड़े शेख बने। इन्हां दे शागिर्द अगों कौन? मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी, सैयद दाऊद गजनवी, हाफिज मुहम्मद गोंदलवी, मौलाना इस्माइल सल्फी, ये शागिर्द सन इन्हां दे। ते दुनिया तो बाप फौत होया, ख्वाब च बाप मिलया, पुत्र अब्दुल मन्नान दुनिया ही कुरान तू पढ़ना, जन्नत च दर्जे मेरे वधन डे। इत्थे आन के पछताना दूजे पुत्र भी नबीने हुंदे, उन्होंने भी कुरान दे हाफिज ही बना छड़दा। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह शबान दे अयाम आखिरी है ही घर आए तो माँ वेड़े च बैठी है। माँ दी पुत्र को हाफिज लभे ही तरावियां वास्ते। उदों तुहानूं पता अज तो 30-40 साल पिछे टुर जाओ ना तो हाफिज लभना पैंदा ही तरावियां पढ़ाने वास्ते, इन्हें हाफिज नहीं सन। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी फरमान लगे माँ जी हाफिज तो नहीं मिलया, बड़ा लभ्या तो चलो फिर मेहनत करने अगों लभ जाएगा। हुण सियालकोट दी मस्जिद शहर दे विच ते मां कहन लगी पुत्र मेरा बड़ा दिल करदा सी बर्रे सगीर च तेरे वर्गा आलिम को नहीं, लेकिन तू तरावियां दे किसे हाफिज पिछे खलो के पढ़नियां ने ते मेरा दिल करदा सी तू कुरान सुनांदा ते तेरी मां तेरे पिछे खलो के कुरान सुनदी। जदों इन्नी गल कही ना भी तेरी मां पिछे खलो के कुरान सुनदी ते नाल मां रो पई। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी ने मां नूं फड़ के अपने सीने नाल अम्मी दुआ कर। फिर मां ने दुआ की, पहले रोजे पहला पारा याद किया, तरावियां ही सुनाया, दूजे रोजे दूजा, तीसरा रमजान के 30 रोजे भी मुकम्मल हो गए, कुरान के 30 पारे भी मुकम्मल हो गए। मैं क्या जे आंदे भाबियां जी वली को नहीं, ये तो वड्डा वली केड़ा जे? बोलते नहीं जिन्हें 30 दिन ही कुरान ही हिफज किया। अल्लाहु अकबर। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी वो शख्सियत सी कि रात नूं अगर कोई फितना जन्म लैंदा सी ना तो मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी सवेरे उसदा जवाब दे दिंदे सी। जिहड़ा दावा कीता सी 1891 मिर्जे ने नबूवत दा ईसा बन के आया, उहदे मुकाबले ते सब तो पहली जिहड़ी किताब लिखी शहादतुल कुरान हयाते मसीह थी, 2 जिल्दां दे अंदर ਉਹਦਾ दिबाचा पीर मेहर अली शाह ने लिखा, गोलड़ा शरीफ वाले ने दिबाचे च लिखा पीर मेहर अली शाह ने कि अज तो बाद क़यामत तक हयाते मसीह ते कोई किताब ना लिखी जाए, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की किताब ही काफ़ी है। इतने बड़े आलम दीन सन। पैर च नासूर होया मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी जैसा सिक्का रावी, चिट्ठी लिखी मेरे पैर च नासूर हो गया। इको ही हिंदू डॉक्टर सी जिहड़ा दम करदा सी, यानी कि ऑपरेशन करदा सी। मौलाना ने चिट्ठी लिखी, मौलाना फरमान लगे आ जाओ, मैं टाइम ले लिया, तुम आ जाओ अमृतसर। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी पहुँचे, डॉक्टर को टाइम से गए, वो लगा क्लोरोफार्म सुगान। उदों क्लोरोफार्म सुगाते हूँ तो बेहोशी करने वाले टीके भी निकल आए ने। मौलाना फरमान लगे की लगा कर जी, तुहानूं बेहोश लगा कर ऑपरेशन करना, ऑपरेट करना। मौलाना फरमान लगे जदों दी हदीस पढ़ी है ना कि रात नूं सौण लग्या सूरा मुल्क पढ़ के सोया करो, मैं अज तक इहदा नागा नहीं किया, मैनूं सूरा मुल्क पढ़ लैण दे। वो हिंदू डॉक्टर कहण लगा 2-3 मंत्र होने ने, हुणे ही मुक जाने ने।
ਉਹਦੀ ਜਾਣੇ ਭਲਾ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਸੁੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਿਮ 'ਚ ਵੀ उस वक़्त तक ज़बान चलती रही जब तक सूरा मुल्क पूरी नहीं हो गई। तो हिंदू डॉक्टर ने बात कही मौलाना सनाउल अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह नूं, अगर ये मौलवी साहब दौराने ऑपरेशन फौत हो जाते इन्हें क़यामत नूं भी कुरान पढ़ते ही उठना सी। वो ऐसे लोग सन। अज साडी कुरान नालों दूरी बड़ी हो गई है, असीं कुरान पढ़ते ही नहीं, कुरान सिखते ही नहीं, कुरान सिखाते ही नहीं, कुरान का इंतजाम करते ही नहीं। जाओ अपने घर के अंदर अज तो बाद बात नोट करो, अज तो बाद कुरान की तलावत शुरू कर दे। नबी अलैहि सलाम की एक हदीस और याद आई। आका फरमाते ने एक बंदा दुआ च मंगदा है, एक बंदा जिहड़ा कुरान पढ़दा है, ते दूसरा बंदा जिहड़ा है वह नफलों च मंगदा है। नफलों च ये नफलों च मंगदा पिया इनू मिलना है, ये दुआ च मंगदा इनू मिलना है। कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ी जा रहा है ते मंगदा नहीं, सिर्फ कुरान ही पढ़दा है। उत्तों आवाज़ आउंदी है तेरे मंगन की लोड़ नहीं, तू कुरान पढ़दा जा, मैं तेनू बगैर मंगन तो अता करदा जावांगा। कुरान दी लड़ी च परो गए जड़े लोग, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। अबू बकर कुरान न लगे सिद्दीक बन गए, उमर कुरान न मिले फारूक बन गए, उस्मान कुरान न मिले तो ज़ुन्नूरैन बन गए, अली कुरान न मिले हैदर करार बन गए, उबैदा इब्ने जर्राह कुरान दी लड़ी च परोए गए, अमीनुल उम्मत दा लकब पा गए। मैं कुर्बान जावा हंजला कुरान न मिले, गसीलुल मलाइका दा लकब पा गया, अमीर हमजा कुरान न मिले, सैयदुल शुहदा दी डिग्री पा गए। अगे आओ ना, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कुरान न मिले तो मुफस्सिर कुरान बन गए, बिलाल कुरान न मिले तो मुअज्जिन मुस्तफ़ा बन गया है। वो लोगों जड़े उदों कुरान न मिले वो साबी सन, सहाबी बन गए, तो जड़े इस दौर च कुरान न मिले वो वहाबी बन गए। इस ज़मीन की धरती ते कुरान हदीस की दावत खालिस अगर देंदे ने तो उलमाए अहले हदीस देंदे ने, जिन्ना कभी ये नहीं लिखा कि हमारे इमाम का कौल ये है तो हदीस ये है, लिहाजा हम इमाम का कौल मानेंगे हदीस नहीं मानेंगे। असी कहने दुनिया के सारे कौल क्यास अकल ठुकरा दियो, मुहम्मद दी हदीस का परचम लहरा दियो। इस वास्ते मेरे भाइयों कुरान भी नेड़े ने, रमज़ान भी नेड़े नेड़े आ रहा है। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ने इस कुरान नूं उतारिया रमज़ान के महीने च। रमज़ान नूं अजमत और फजीलत तिन्ना गल्लां दी वजह तो मिली है। एक रमज़ान दे रोज़े फर्ज ने, ये अजमत दा सबब बने चीज़। दूजा रमज़ान के अंदर कुरान आया, कुरान की वजह तो भी रमज़ान नूं मुकाम मिले। तीसरी बात, रमज़ान के अंदर एक रात आउंदी है जिन्हों लैलतुल कदर कहा जाता है। जेड़ा बंदा उस रात नूं पा लैंदा है, अल्लाह उस बंदे नूं 83 साल की इबादत का सवाब अता कर दे। इस वास्ते इस रमज़ान नूं अल्लाह ने इज्जत मुकाम दिता है। क़यामत का दिन होएगा ना, अस्सियाम वल कुरान यशफ़ानी लिल अब्द, कुरान ते रमज़ान क़यामत नूं बंदे दी सिफारिश करेगा। हशर दा दिहाड़ा सख्त, दिल परेशान तेरा, यार बेली बनसी ओथे, रोज़ा ते कुरान तेरा। ओए करनगे प्यार आखन क्यों जावें डोलदा, माहे रमज़ान आया रहमतां थी झूलदा। रोज़ा ते कुरान आखे बंदिया घबराई ना, असी तेरे यार हो सां एवें गम खाई ना। मौला दे कोल जाके रोज़ा पहले बोलदा, माहे रमज़ान आया रहमतां थी झूलदा। ते रोज़ा आखे, रोज़ा की आंदा अल्लाह नूं, रोज़ा आखे मौला इन्ने
कदर मेरा पाया सी, यारी ला के नाल मेरे दगा ना कमाया सी, रख के ते रोज़ा इन्ने काम कीता नहीं फजूल दा, माहे रमज़ान आया रहमतां थी जूल दा। कुरान की आंदा सुनिया कुरान छड्ड नींदरां प्यारियां, रातां नूं जगाई रखिया हाफजां ते कारियां, मन्निया सी कहना इना रब ते रसूल दा, माहे रमज़ान आया रहमतां थी जूल दा। इस वास्ते रमज़ान दे रोज़े इंशाअल्लाह रखने ने ना। मैं थोनों 3 हदीसां लगा सुनान किताब सियाम तरगीबो तरहीब सही। आका फरमांदे ने जिहड़ा नफली रोज़ा एक रखदा है ना अल्लाह दी रज़ा दी खातर, नफली अल्लाह उन्होंने 70 साल की मुसाफत जिन्ना जहन्नम की अग को दूर कर दे। दूजी हदीस आई है 100 साल की मुसाफत जिन्ना। तीजी हदीस आई है जिहड़ा एक नफली रोज़ा रखता है एक खंदक जहन्नम को दूर कर दे। खंदक कितनी है? जिन्ना जमीन आसमान के दरम्यान खला है। ये नफली रोज़े का अजर दसिया। ते फर्जी रोज़े की वारी आई, अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे फरिश्ते हो फर्जी रोज़े का अजर तुसी नहीं लिख सकते, थोड़ियां कलमां टुट जाणगियां, सियाइयां मुक जाणगियां, पर फर्जी रोज़े का अजर नहीं लिख सकणगियां। क़यामत का दिन होएगा, ये फर्जी रोज़ा रखन वाला मेरे को आएगा 100 मोली व अना अज्जी भी, मेरे फर्जी रोज़ा रखन वाला मेरे को आएगा, मैं रब इनू एदे रोज़े का अजर खुद ही अता करांगा। अल्लाहु अकबर। और रमज़ान के अंदर अल्लाह आसमाना के दरवाजे खोल देंदा है, जन्नत के दरवाजे जहन्नम के बंद कर देंदा है। फरमाया जन्नत का कोई दरवाज़ा पूरा रमज़ान बंद नहीं हुंदा, जहन्नम का कोई दरवाज़ा पूरा रमज़ान खुलता नहीं। ते फरिश्ते आंदे ने या बागी अल खैर अकबिल, और नेकियां करने वाले होर शुरू कर दे, नेकियां दी रफ्तार तेज कर दे। ते बुराई करने वाले बुराइयां तो रुक जा, अल्लाह दा मेहमान आ गए। अल्लाह ताला सानू इस मेहमान दी और कुरान दी कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह जितने मुसलमान बीमार ने सेहत अता फरमा, जिन्हें दुखी लाचार ने दुख दूर फरमा, जिन्हें परेशान ने परेशानियां दूर फरमा, जिन्हें दुनिया तो चले गए अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमा। अल्लाह साडे हालात ते रहम फरमा। अल्लाह साडे भाई इहतशाम साहब दे वालिद मोहतरम दी कबर नूं जन्नत दी क्यारी बना। अल्लाह इन्हां दे वालिद इस मस्जिद दे खतीब रहे ने, आलम दीन सन। अल्लाह ताला उन्हां दी कबर नूं जन्नत दी क्यारी बनाए। अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नतल फिरदौस वइज़ु मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबिन नार। जिन्हां जिन्हां दे वालदैन मेरे समेत चले गए अल्लाह सब दी बख्शिश फरमा। अल्लाह मेरे अम्मी अब्बू चाचू जिथे आराम कर रहे हैं उन्हां दियां कबरां नूं अपने नूर नाल मुनव्वर फरमा। अल्लाह मेरी आहलिया दी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा। अल्लाह उस बंदी नूं करवट ते जन्नतुल फिरदौस दे दाखले नसीब फरमा। मेरे भाई अब्दुल हफीज़ साकब अल्लाह उन्हां दी कबर ते भी करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा। मेरे भाई मुर्जा दी वालदा मोहतरमा नूं अल्लाह सेहत अता फरमा। जिन्ने मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग बच्चे मामा बहना बेटियां आईयां अल्लाह इन्हां सारियां नूं दुनिया आखरत दीयां नेमतां नाल माला माल फरमा। मेरे अल्लाह जो सुनिया सुनाया अमल दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह साडे हालात ते रहम फरमा, साडे गुनाहां नूं दरगुजर फरमा। कबर हशर दियां सख्तियां कोलों जिलतां कोलों अल्लाह महफूज फरमा। नबी दे जंडे लिवाइल हमद थले जगह नसीब फरमा। नबी दे हाथ चो हौज़े कौसर दा पानी नसीब फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका। साडे एक दोस्त ने भाई शाहद साहब शाहद डेढ़ साहब उन्हां दी वाइफ दा ऑपरेशन होया। अल्लाह उन्हां दी वाइफ नूं सेहत कामिला आजला अता फरमा। अल्लाह साडी बाजी जान नूं सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। चौधरी साहब नूं भी अल्लाह सेहत अता फरमा, उन्हां दे बच्चे नूं भी अल्लाह सेहत अता फरमा।
इस तरह जितने साडे दोस्त अहबाब अजीज़ो अकारब अस्पताल करांच बीमार ने अल्लाह सब नूं शिफावां अता फरमा। रबना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। नमाज तो बाद भाई सारे चावल खा के जाए। Yeah.